Great. Good evening, Mr. Jha. It's an honor to be here with you, and I have to thank Ajmer for his persistence and his initiative, and it's great to be here. So what Ajmer and I had discussed was that we will do a question and answer session because once I start talking, I go on talking, which might not necessarily address the questions that people have, the questions that the other viewers have. So maybe you can act as a moderator, and I would be happy to share whatever information I can on the mental health related aspects of this phase that we are going through. Sir, if you thank you very much, Dr. Chug. I would rather request you that at least for 15 minutes you should give some, enlighten us, and then we will ask questions. We have already got a lot many questions, but I think that first we should listen to you for 15 to 20 minutes, if you agree, if you permit. Thank you, sir. Thank you. Okay, so what I'm going to do is I'm going to share my experiences of the last 4 months. The last 4 months are entirely dedicated to the ravages of the coronavirus and the ravages of COVID-19. So I'm going to talk about the impact that this period, the virus and the disease have had on the mental health or the psyche of an average Indian. Now, to give you a background, I've been a doctor for close to 40 years. I've been a psychiatrist for a very large percentage of those 40 years. And the usual illnesses or the usual problems that I, as a psychiatrist, would see, the commonest problem by far was something called depression. Following depression, a close second was anxiety disorders. The third was what we will cause, in layperson's terms, you call it addictions, but I would call it chemical use, chemical abuse, or chemical dependence. Then there's a kind of an anxiety disorder which is called obsessive compulsive disorder. I'm mentioning these four specifically because the numbers that I have dealt with in the last 4 months in these four domains, it has virtually gone through the roof. So I will explain to all of you what I mean when I use these terms, because even before COVID times, these were probably the commonest illnesses that any psychiatrist would see. And as WHO has rightly pointed out, depression today is the commonest major problem in the world. I mean, globally, it's not that it is an India-specific phenomena or an Asia-specific phenomena. You have virtually the same incidence, the same prevalence of depression in India as you have in the rest of Asia, as you have in Europe, as you have in the Americas, as you have in Africa. Depression by far is the commonest illness. It's so common that we call it the common cold of major illnesses. When we talk about minor illnesses, everyone seems to get a common cold every now and then. It's all, twice a year when the season changes, there is a tendency for people to develop common cold. Similarly, it is believed that at least 20, 25, maybe even 30% of this world's population is go through a phase of an illness which we call depression at least once during their lifetime. So what is depression? Let us, or let me try and shed some light on depression, because for a layperson, every psychiatric illness is depression, which is incorrect. Depression is essentially a disorder of mood. A normal mood is, very simply put, a normal mood is normal. There are times when you feel happy, you feel sad, you feel irritated, you feel anxious, you feel fearful. But these are emotions which do not impact your normal functioning adversely. These are emotions which you are able to deal with. If you're feeling sad because something negative has happened in your life, you know what you can do to come out of that phase. If you're feeling anxious about something, you know what you can do to come out of that phase of anxiety, and you successfully manage to do it within a few minutes, or maybe it'll take you 3, 4, 5 hours, but your life is not impacted adversely. So when we talk about depression, the primary
symptom of depression is a low mood or a sad mood. People feel or they start to feel weepy without any evident reason. There are episodes when you're sitting and you start crying, and when someone asks you why you're crying, there is no reason that you can give to that person. You cannot tell yourself why you're crying. It is just a reflection of the low mood or the sad mood that you have at that time. Coupled with this low mood or this sad mood, we have something called lack of interest or lack of pleasure. Things that were very interesting to you earlier, things which were pleasurable to you, you lose that feeling of interest, you lose that feeling of pleasure, and this is something that we call anhedonia, lack of interest or lack of pleasure. When both the low mood and this anhedonia persist for at least 2 weeks, that is when we say that this person possibly is suffering from a depressive illness. And of course, in addition to these two, a very important criterion is that it should, this combination of low mood and lack of interest, it should have the ability to impact either your personal life or your social life or your occupational life in a negative way. In addition to these criteria, in depression, what else do we expect to see? There are physical symptoms, there are problems with sleep, there are problems with appetite. Usually, the sleep will go down, you have disturbed sleep, which is called insomnia. But in some people, your sleep or the time that you need to sleep for that increases. That is what we call hypersomnia. Similarly, where appetite is concerned, in a lot of cases of depression, you expect to see a lowering of appetite, but in some cases, your appetite might increase and you end up putting on weight also. These are the physical symptoms. But then we come to the cardinal symptoms involving the brain, or symptoms that involve our thought processes. You look at the present life that you're leading and you find that you're not happy at all, and for some time you have not been happy. Then you start looking towards the future, and the future also looks bleak to you. The future looks unhappy to you, and that is what we call feelings of hopelessness or thoughts of hopelessness, that things are not going to get better. Then there is a tendency within you to compare yourself with people around you, and inevitably and invariably you come out feeling inferior in the process. This is what I would call feelings or thoughts of inferiority, or feelings or thoughts of worthlessness. So there is hopelessness, there is worthlessness, and then you try and come out of this state, but you are unable to do it. You feel helpless, you feel trapped, and this is what we would call feelings or thoughts of helplessness. When these three things are present together, there are feelings of hopelessness, there are feelings of worthlessness, there are feelings of helplessness. It's a very typical triad, TRIAD. Triad means a collection of three things. It's a very typical triad of thinking in depression. And when these three things are present, what is the next logical thinking step that will come up? You start feeling that this kind of life that I'm leading, it is not worth living. Now, a person who's 20 years of age, 30, 40, even 50 years of age, in reasonably good physical health, you might have this thought that, life is not worth living. But you are not going to die a natural death, because otherwise, physically, you are in reasonable health. And so, the next thought that comes up is that if this life is not worth living and I am not going to get a natural death, then I want to do something to end my life, which is what we call suicidal thoughts or suicidal ideation. The suicidal thoughts come, suicidal ideation comes, some more time goes by, and you are still feeling as stuck, as helpless, as hopeless as you were feeling for the last several weeks, last few months. And that is when the person who is depressed, who has a reasonably severe degree of depression, he starts thinking of ways in which he can end his or she can end her life. And that is when a suicidal attempt is made. This is the complete sequence of what depression is. I have seen tens of thousands of cases of depression in the last several years, but in these last 4 months, the number of cases of depression that I've seen, I would actually say that the numbers have gone through the roof. So many people have called up. I mean, the clinic is shut. There has been only teleconsultation that has been going on. So many people have called up. The description that they give of what they are going through, it's almost a textbook description of
depression, which is what I have described right now. And we are finding that this COVID-19 has actually caused a very, very sharp escalation of the number of depressions in our country, the number of people who are harboring a lot of negative thoughts, who are harboring suicidal thoughts. And statistics show that possibly even the number of suicidal attempts or completed suicides has gone up. So for me, depression is the number one psychiatric problem that we are dealing with. Then the number two is what we call anxiety disorders. Anxiety is something which, again, as a layperson, everyone who's here, everyone in this world uses the term anxiety. I'm feeling anxious. I'm feeling tense. I'm feeling stressed. What is anxiety? Very simply, anxiety is a very uncomfortable state of existence. You are feeling as if you're constantly walking on edge. You are feeling edgy. You're walking on a razor's edge. You start getting irritable. You have this feeling that something is going to go wrong. You do not know what is going to go wrong. It's like a person who has to get into a lift, starts feeling, what if the electricity goes? I'll get trapped in the lift. This is anxiety. Or a person who feels that, if I go into a plane when the plane is taking off, what if something happens to the plane or to the engine or to the pilot? I will get trapped. That is anxiety. Or in these last 4 months, COVID-19, what if I get it? What if my children get it? What if my spouse gets it? What if my parents get it? This is classical anxiety. And again, the number of cases of anxiety have skyrocketed in this period of lockdown. So, along with depression, the second commonest problem that I have had to encounter as a psychiatrist is anxiety disorders. I mentioned earlier that in depression, your sleep gets affected. Exactly the same thing happens in anxiety. Usually, in anxiety, what will happen is you lie down to sleep, you are tired at the end of a long day. You are tired, you lie down to sleep, but you are unable to sleep. That means there is a delay in the onset of sleep. In depression, the reverse happens, that you might be able to sleep, but you wake up much earlier than you normally did. We have found that during this period, because there were sleep disturbances, because anxiety is a very, very uncomfortable sensation or a very uncomfortable emotion for a human being to deal with, people did not know what to do. They wanted a quick remedy. The quickest remedy is you go to a chemist, ask him for some medicine to decrease the anxiety. And chemists, being what they are very, very ready to act as doctors, or people have their own access to sleeping pills and so-called, I mean, I don't want to take the names of or the trade names of medicines which are commonly abused, but it is very, very easy to have access to those medicines. So people started using those pills, and then they started abusing those pills, because you take those pills for a few days, you become used to or habituated to the effect of one tablet. You start needing 2 tablets, and you need 3 tablets, 4 tablets, 10 tablets, and that is the beginning of addiction. And then people started feeling that, even with 2 or 3 tablets, my anxiety is not going away. I cannot sleep at night. I don't have to go to work the next day. I'm working from home, so it's okay to start drinking. So the number of people who started drinking and the number of people who were already drinking, the amounts of alcohol that were consuming, that started to skyrocket. Now, I mean, we know that during the lockdown, all alcohol shops, all liquor shops in this country were closed. That had a paradoxical effect. The paradoxical effect was that people who were addicted to alcohol, they suddenly ran out of alcohol. So they started, looking around for black marketeers who were willing to supply maybe even spurious liquor at higher rates, inflated rates. That caused its own medical problems. Finally, they reached a stage where alcohol was not available. And so we started, as psychiatrists, as a community, we started getting a lot of people who were forced to stop drinking suddenly, and they started having a lot of withdrawal symptoms. And at the same time, the consumption of pills was skyrocketing. So these things, they started combining. Then people would start taking anti-allergic medicines, any medicine that had any kind of sedative effect. So essentially, it became like a khichdi inside the person's brain.
So this was another huge problem that I have been facing in these last 4 months. The fourth thing that I mentioned was something called obsessive compulsive disorder. The abbreviated form of obsessive compulsive disorder is OCD. It's a term which I'm sure all of you are familiar with. Even if you're not familiar with the term, you have seen in movies, or you have some friend, or you have some relative who feels that his or her hands are dirty, and so that person keeps washing his or her hands the whole day long, maybe 5 times, 10 times, 20 times, 30 times. The brain does not get satisfied that my hands are clean and it is okay to stop washing them repeatedly. Now, OCD is one of the commonest disorders that a psychiatrist would expect to see in his clinic. But what happened once COVID started? Once we started realizing that there is a droplet infection that is happening, and if your hands are contaminated, you can touch your mouth, you can touch your nose, you can touch your eyes, and you can contract the illness. And so doctors started advising that you should sanitize your hands and you should keep washing your hands regularly. Now, initially, as a psychiatrist, it sounded funny to me when the first patient of OCD, an old patient of mine, she came up to me or she called me up and she said, Doc, I've been telling you for the last 10 years that it is very important to wash hands regularly. And look, now even doctors are saying that you should keep washing your hands regularly. But somehow this spread like a wave, and every patient of OCD, earlier patients, every patient of mine with OCD who had contamination linked OCD, that my hands are dirty, they started saying the same thing, that we have always said that it is important to wash hands. The problem happened that earlier they were washing hands 20 or 30 times a day, and now they started doing it 50 times a day. They were unable to move away from the wash basin, and we reached a situation, where family members started getting frantic, that this person, this patient, he or she would run through a full tank of water, maybe 500 liters, maybe 1,000 liters, would spend 2 hours in the washroom. But there was no satisfaction in the brain that I've cleaned myself enough and there is no virus which is now sticking to me or to my body or to my hands. So these are the commonest problems that psychiatrists have been encountering. And funnily enough, the other medical disorders, their incidence seems to have gone down because hospitals were virtually shut and clinics were shut, but no one was really complaining. Whereas the incidence and the prevalence of psychological and psychiatric disorders, especially these disorders that I mentioned, depression, anxiety disorders, specifically OCD, chemical abuse, drug dependence, these things really escalated. And now, Mr. Jha and Ajmer, I would be very, very happy to take questions. Like I said, I can go on and on. I can talk about. No, thank you, Dr. Saab. Thank you very much. We have got a lot of questions and we continue to get questions. Sure. I will, with your permission, I will start from the first question. Yeah. One person is asking whether anxiety develops at home or in public. Whether it develops at home or in public? Yes. It can. Anxiety is a disorder. It can develop anywhere. It's like high blood pressure. There are some people whose BP is high at home. There are other people whose BP is high when they're at office. There are other people whose BP is high when they go into a shopping mall. So when it is a disorder, it afflicts you irrespective of who you are, where you are, what you are. People can have, to repeat myself, anxiety is agnostic. It does not say that, oh, I will develop only when the person is in his office, or I will develop only when the person is at home. Thank you, sir. Ajmerji, you wanted to ask something? Sir, we have a request that if you could please explain in Hindi also. Sure. हिंदी में बता देंगे हमारे रीडर्स के लिए, लिसनर्स के लिए. हाँ, तो क्वेश्चन का आंसर हिंदी में अंग्रेजी मिला के दे दें साहब. थोड़ा बिल्कुल. मैं तो मेरे को लगा कि मैं मिक्स नहीं करना चाहता था डेलिबरेटली, बट आई वुड बी वेरी हिंदी को स्पेशल. डॉक्टर साहब, मैं आपको बताते हुए बड़ा खुशी हो रही है मुझे कि 500 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया और वो आपको सुन रहे हैं. आई थिंक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है जो आपने लिया, बिकॉज मेंटल हेल्थ एक्चुअली हमारे देश में एक डस्टबिन डायग्नोसिस, कोई कभी बात ही नहीं. तो आपने इनिशिएटिव लिया और उम्मीद है कि बहुत लोगों को इससे लाभ भी मिलेगा.
यू सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन कि हाउ डज न्यूज रिगार्डिंग सुसाइड ऑफ सेलिब्रिटीज इम्पैक्ट द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन? साइकाइट्री में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कॉपी कैट सुइसाइड। कॉपी कैट कौन होता है? जो एग्जाम में मेरे सामने कोई बैठा हुआ है, वो इम्तिहान, मान लो आईआईटी का इम्तिहान दे रहा है, कोई भी इम्तिहान दे रहा है, और मैं पीछे बैठ के नकल कर रहा हूं, तो मेरे को कॉपी कैट बोलेंगे। उसी तरह से जब किसी सेलिब्रिटी की सुइसाइड की सेंसेशनलाइज करके रिपोर्टिंग होती है मीडिया में, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे टीवी हो, चाहे रेडियो हो, तो एक इम्प्रेशनेबल माइंड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई उस दौर में से गुजर रहा है जहां पे उसके अंदर जो है होपलेस, निराशा की भावना है, वो हताश महसूस करता है अपने प्रति, हेल्पलेसनेस की फीलिंग होती है, या अपने आप को वो दूसरों के प्रति हीन भावना अपने अंदर महसूस करता है, फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी, तो उसके दिमाग में आता है कि वो आदमी इतना सक्सेसफुल था, उसके अंदर भी यही सिचुएशन थी, यही उसके अंदर भी थॉट्स चल रहे थे, अगर वो अपने लिए कुछ नहीं कर सका तो मैं कौन हूं? मैं तो बिल्कुल नाचीज हूं। तो अगर उसके लिए अपनी जिंदगी खत्म करना, सुइसाइड अटेम्प्ट कर लेना एक वैलिड रास्ता था, तो हो सकता है मेरे लिए भी वो एक वैलिड रास्ता है। तो ये देखा जाता है कि जब कोई सेलिब्रिटी सुइसाइड करता है, उसके बाद एक स्पेट ऑफ सुइसाइड्स हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉपी कैट सुइसाइड्स। थैंक यू सर। एक डॉक्टर साहब कि आप मतलब कि इससे पहले कि डॉक्टर के पास जाए, हमें जो पेशेंट हैं और जो उनके परिवार है, चाहे दोस्त है, उनके लिए क्या आपका सुझाव है कि क्या करना चाहिए अगर मुझे पता लग गया है कि किसी में डिप्रेशन है या एंजाइटी है? ठीक है, अच्छा, अब हम आपका इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं डिस्कस करूंगा कि अगर किसी परिवार के सदस्य को पता चलता है कि मेरी वाइफ को, या मेरे हस्बैंड को, या मेरे बच्चे को, या मेरे फादर को, या मदर को हो सकता है कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको बीपी की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है, हड्डी टूट जाती है, तो सबसे पहले आप कहते हो अरे बीपी हमने नापा है, वो आपका जो है 200/130 है, तुरंत एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ। या शुगर नापी है, जो है 240 आ गई है, तुरंत एक स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ। या गिर गए, हड्डी टूट गई, डॉक्टर ने कहा एक्सरे में देखो जी हड्डी ऐसी होनी चाहिए, ऐसे हो गई है, वो डॉक्टर कहता है जी ऑपरेशन करा लो, आप कहते हो हाँ जी कर लो, और वो कहते हैं जी प्लास्टर चढ़ा लो, आप कहते हैं हाँ जी लगा लो। बट जहां पे साइकाइट्रिक प्रॉब्लम होने की संभावना है, कोई आपको बोल रहा है कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, पापा मैं उठ नहीं सकता, मेरा मन नहीं करता, मैं इम्तिहान नहीं देना चाहता, सब घर वाले उसकी जान खा जाएंगे, नहीं बेटे तुम्हारी तो विल पावर इतनी स्ट्रांग है, तुम कोशिश करो, तुम उठो, तुम रोज सुबह उठ के टाइम पे नहाओ, फिर एक गिलास दूध सुबह पियो, एक गिलास शाम को पियो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। कोई लॉजिक ही नहीं है, ऊपर वाला आपकी हड्डी ना तोड़ने में उसका योगदान था, ना हड्डी जोड़ने में योगदान है, ना बीपी बढ़ाने में योगदान था, ना बीपी कम करने में योगदान है। तो क्यों जस्ट बिकॉज हम डिप्रेशन को एक एक्सरे में नहीं देख सकते, या एक बीपी मशीन में नहीं देख सकते, या एक नीडल में नहीं देख सकते, तो क्या डिप्रेशन एक बीमारी नहीं है? इसीलिए जब तक हम, मेरा मानना है कि जब तक ग्रास रूट लेवल के ऊपर अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी, साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स हमेशा जो पेशेंट है उसकी जिंदगी को तबाह करने का पोटेंशियल रखती है। और एज अ फैमिली मेंबर आपने उसको ये नहीं बोलना, नहीं 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 तुम ये मत समझो कि तुम्हारे को कुछ खराबी है, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत चंगे भले चंगे हो, वही नहा लो, सैर कर लो, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, उससे बीमारियां नहीं ठीक होती। एज अ फैमिली मेंबर, एज अ फ्रेंड, आपका सबसे महत्वपूर्ण योगदान तब होगा जब आप उसको एनकरेज करोगे कि यार मेरे को लग रहा है कि तेरे को प्रॉब्लम है, चल तेरे को किसी डॉक्टर के पास दिखा। अब हर व्यक्ति को इंडिया में एक्सेस नहीं है टू अ साइकाइट्रिस्ट और टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। आप चलो जीपी के पास ही चले जाओ, जीपी को साइकाइट्री की ज्यादा समझ नहीं है, बट उतना उसको पता है कि ये दूध पीने से और नहाने से और टाइम पे उठने से प्रॉब्लम नहीं ठीक होने वाली। ये मैं क्यों इतने विश्वास के साथ कह रहा हूं, क्योंकि आज आप 100 जीपी से 10-10 प्रेस्क्रिप्शन ले लो, हम अगर 1000 प्रेस्क्रिप्शन ले लें और उनको एनालाइज करें, उन 1000 में से कम 500 से 600 प्रेस्क्रिप्शंस में एक साइकाइट्री की दवाई जरूर लिखी होगी। आप 100 कार्डियोलॉजिस्ट की प्रेस्क्रिप्शंस ले लो, हर एक की 10-10 प्रेस्क्रिप्शन ले लो,
1000 प्रिस्क्रिप्शन आप कार्डियोलॉजिस्ट की स्टडी करो, एनालाइज करो, मैं कह रहा हूं उसमें 600 से 700 में आपको साइकाइट्री की दवाई लिखी हुई मिलेगी। आप न्यूरोलॉजिस्ट का यही कर लो, 1000 में से आपको 70 से 80% में कुछ ना कुछ साइकाइट्री की दवाई जरूर लिखी हुई मिलेगी, चाहे वो एंटी एंजाइटी हो, एंटी डिप्रेसेंट हो, नींद की दवाई हो। आप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो है पेट की जो बीमारियों को इलाज करते हैं, वही 60 to 70% की प्रिस्क्रिप्शन में आपको साइकाइट्रिक दवाई मिलेगी ही मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जो माइंड है हमारा, जो एज अ साइकाइट्रिस्ट मैं माइंड नहीं यूज करता, मैं ब्रेन यूज करता हूँ। सबसे प्रमुख ऑर्गन हमारे शरीर में हमारा ब्रेन है। सारा बॉडी का फंक्शन ब्रेन से कंट्रोल होता है। ब्रेन के एक हिस्से में कुछ त्रुटि होगी, कुछ कमी होगी, तो बॉडी के एक बहुत बड़े फंक्शन में प्रॉब्लम सामने आ जाएगी। और जब तक ब्रेन के उस जहां पे वो कमी है, खामी है, उसको हम नहीं ठीक करेंगे, आप जो मर्जी कर लो, बॉडी के डिसफंक्शन के लिए वो ठीक नहीं होगा। तो फैमिली और फ्रेंड्स को क्या करना है, उनको अगर अवेयरनेस हो कि ये पॉसिबली एक बीमारी है, तब वो सही राय देंगे कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी है इसका सोल्यूशन है, चलो एक डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक्चुअली ये हम लोग के लिए भी बहुत बड़ी मतलब कि एक रेवल्यूशन है कि हर डॉक्टर कोई ना कोई 70-50% टाइम वो एक देते हैं एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी के लिए। अब इसी से मिलता जुलता सवाल है कि ज्यादा अल्कोहल लेने से या ज्यादा इंटॉक्सिकेशन से भी क्या मेंटल हेल्थ या मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है? हैं। या वो हाँ हाँ, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, पूरा कंप्लीट करिए। हाँ, या ज्यादा माने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से ही हम ज्यादा पी रहे हैं या ज्यादा नशा कर रहे हैं, माने कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस दोनों हो सकता है इससे। इसका मैं 2 हिस्से में जवाब दूंगा। मान लो आप और मैं किसी एक गांव में जाते हैं, वहां पे गाय बंधी हुई है, तो वहां का गांव का मुखिया कहता है झा साहब और चुप साहब आ जाओ, एक एक गिलास दूध का पी लो। तो बड़ा अच्छा वो गरम गरम दूध मिलता है, उसमें आप भी पीते हो, मैं भी पीते हो, बहुत पसंद आता है, लगता है कि स्ट्रांग हो गए हैं। अगले दिन जाते हैं, हम कहते हैं अरे तो 1 गिलास पीने से इतना फायदा हो, हम 2 गिलास पी लेते हैं, 1 गिलास सुबह पी लिया, 1 गिलास शाम को पी लिया, बहुत बढ़िया। अब मैं घर जाके, आप समझदार हो, आप कहते हो यार मैं 2 गिलास पी लिए, मैं इसी पे मैं एक या 2 गिलास पीऊंगा। मेरा दिमाग मेरे को कहता है जब 2 गिलास से इतना फायदा हो, मैं दिन के 10 गिलास पी लूंगा तो मैं तो हरकुलिस बन जाऊंगा। मैं जिस दिन 10 गिलास पीता हूँ मेरा पेट खराब हो जाता है और अगले 10 दिन तक पेट ही खराब रहता है। तो इसमें क्या सीख है कि कोई भी आप चीज कर रहे हैं, हर चीज मॉडरेशन में सही है, एक्सेस में हमेशा प्रॉब्लम। आज ये अनुमान लगाया जाता है कि दुनिया में सबसे कॉमन जो केमिकल कंज्यूम किया जाता है, अगर हम चाय कॉफी को छोड़ दें, वो अल्कोहल है। बट क्या दुनिया का हर व्यक्ति अल्कोहलिक है? बिल्कुल भी नहीं। क्या दुनिया में हर व्यक्ति जिसने कभी भी शराब पी है वो अल्कोहलिक है? बिल्कुल भी नहीं। बट एक तरह से दिमाग में एक स्विच होता है जो अभी ऑफ पोजीशन में है। कुछ लोगों में उस स्विच की पोजीशन बदल जाती है, जब वो ऑन में आ जाता है हम बोलते हैं कि अब इसको अल्कोहल डिपेंडेंस हो गया, या इसको शराब की लत लग गई है, या ये अल्कोहलिक हो गया। वो फिर हम उसको बीमारी का लेबल लगा देते हैं। और वो चीज हर केमिकल के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो सिगरेट हो, शराब हो, चरस हो, गांजा हो, कोई भी केमिकल हो। जब दिमाग में स्विच पलट जाता है, आप एडिक्ट हो जाते हैं, एंड एडिक्शन इज अ साइकाइट्रिक इलनेस। डॉक्टर साहब, एक इसी से कुछ फैमिली के पेरेंट्स लोग पूछ रहे हैं कि जैसे डिसेबल जिनके बच्चे हैं उनका एंजाइटी लेवल और स्ट्रेस लेवल ज्यादा है। दूसरे पूछ रहे हैं कि 10 साल से छोटा बच्चा है मेरा, वो समझता नहीं है, तो उसको क्या करें? तो एक पेरेंटिंग के ऊपर भी 2-3 सवाल है इस तरह से मिलते जुलते कि उनको हम लोग कैसे कन्विंस करें, उनको हम मैंने बच्चों को कैसे कन्विंस करें? 10 साल से छोटा बच्चा, 10 साल से छोटा बच्चा जिद है या मेंटल डिप्रेशन है, एक तो ये सवाल है। दूसरा है कि जो डिसेबल बच्चे के माँ बाप है उनको कैसे, इसमें क्या सोचने का क्या फर्क पड़ता है? उनका स्ट्रेस लेवल हाई हो सकता है। अरुण जी आपकी आवाज कट गई, लास्ट 1-1.5 सेंटेंस ठीक से नहीं समझ आया मेरे। हाँ, मैं 2 सवाल है पेरेंटिंग के ऊपर। एक पूछ रहे हैं कि हमारा बच्चा 10 साल से छोटा है और जिद करता है, उसको कैसे समझाएं, पहली बात। दूसरा
ये है कि जो डिसेबल बच्चे के माँ बाप है उनका स्ट्रेस लेवल ज्यादा है। भाई दोनों क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों माँ बाप से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं एक साथ इसको कह रहा हूँ। अच्छा, अगर आपकी परमिशन हो ना, आज मेरे को मौका मिला है बहुत सारे लोगों को समझाने का कुछ, तो मैं पहले ना पेरेंटिंग के ऊपर एक ब्रॉड सी 2-3 मिनट में एक ब्रॉड पेरेंटिंग स्किल्स के बारे में लोगों को समझाना चाहूंगा विद योर काइंड परमिशन। फिर हम स्पेसिफिक सवाल ले सकते हैं। शुड आई गो अहेड? प्लीज सर, प्लीज प्लीज, सो नाइस, प्लीज गो अहेड। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है कि हम सब स्कूल में पढ़े हुए हैं। जब हम स्कूल जाते थे, हमारी क्लास में एक ब्लैक बोर्ड होता था। हमें पता था कि एक पीरियड 35 मिनट का होता है और एक दिन के अंदर 8 पीरियड होंगे। तो क्या होता था, सुबह स्कूल में असेंबली हुई, प्रेयर हुई, क्लास में गए, पहले पीरियड के लिए हिंदी की टीचर आई, उसने ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा, 35 मिनट बाद घंटी बजी, तो टीचर ने ब्लैक बोर्ड को डस्टर से साफ किया, बाहर चली गई वो, और फिर मैथ्स की टीचर आ गई। उन्होंने 35 मिनट ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा, घंटी बजी, 35 मिनट के बाद वो बाहर जाने लगी, जाते जाते डस्टर से उन्होंने भी ब्लैक बोर्ड साफ कर दिया। उसी तरह से रोज 8 अलग चीजें ब्लैक बोर्ड पे लिखी जाती थी और 8 चीजें मिटाई जाती थी, क्योंकि स्कूल में नियम था कि जो लास्ट टीचर होगी वो शी विल मेक श्योर कि ब्लैक बोर्ड बिल्कुल साफ है। इसी तरह से वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर thousands of classes were held, thousands of periods happened, पता नहीं अनगिनत चीजें अनगिनत बच्चों को समझाई गई, बट वो सब मिटाई जाती थी। और कभी किसी को नहीं पता चलता था कि भी पिछले पीरियड में क्या हुआ, 10,000 पीरियड पहले क्या हुआ, वो छोड़ दीजिए। हमारा मानना ये है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके दिमाग में भी एक तरह का ब्लैक बोर्ड होता है। एक ब्लैक बोर्ड नहीं होगा तो एक छोटी सी स्लेट होती है। हम भी स्कूल में स्लेट यूज करते थे। स्लेट होती थी, चौक से यूज करते थे, लिखते थे उसके ऊपर। तो ये मानना है कि बच्चे के दिमाग में भी एक ब्लैंक स्लेट होती है जब बच्चा पैदा होता है। ब्लैंक स्लेट, स्लेट को आज एप्पल वालों ने एक नई चीज बना दी, उन्होंने बोल दिया टैबलेट है। टैबलेट कहां से शब्द आया? टैबुला से। टैबुला इज एन एंशियंट वर्ड विच मीन्स अ टैबलेट। जो स्लेट्स थी उनको भी टैबलेट बोलते थे। जो ग्रीक्स रोमन लिखते थे, उनको जिस चीज के ऊपर लिखते थे तख्ती के ऊपर, उसको टैबलेट ही बोलते थे, तो उसको टैबुला बोलते हैं। रासा का मतलब है एम्प्टी और ब्लैंक। सो वी बिलीव दैट व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, उसके दिमाग में एक छोटा सा ऐसा स्लेट होता है विच इज कंप्लीटली ब्लैंक। जब बच्चा पैदा होता है उस स्लेट के ऊपर कुछ ना कुछ हम लिखना शुरू कर देते हैं, चाहे माँ बाप लिखें या घर में और बड़े बहन भाई हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी। बच्चा बड़ा हुआ, पार्क में गया, पार्क के बच्चों के साथ खेला, स्कूल गया, स्कूल में टीचर्स, स्कूल की प्रिंसिपल, बच्चा बड़ा होता गया। उस स्लेट के ऊपर हमेशा कोई ना कुछ लिखता रहा। मगर उस स्लेट में और क्लास के ब्लैक बोर्ड में फर्क क्या था कि उस स्लेट के ऊपर जो भी लिखा गया वो कभी मिटता नहीं। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी के किसी भी स्टेज पे होगा, वो क्या है, क्या करता है, क्या सोचता है, इट इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट हैज बीन रिटन ऑन दैट स्लेट। और उस स्लेट के ऊपर लिखा हुआ कभी मिटता ही नहीं है। आज मैं 58.5 साल का हो गया, आज भी मैं जो हूं, कल मेरे साथ क्या हुआ था उसका कुछ ना कुछ प्रभाव मेरे आज, मेरा जो इमीडिएट प्रेजेंट है उसके ऊपर है। आज से 6 महीने पहले क्या हुआ था उसका भी इम्प्रिंट मेरे आज के प्रेजेंट में है। आज से 58 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे बाप ने मेरे साथ क्या किया, मेरी माँ ने क्या किया, वो सब उस स्क्रिप्ट में लिखा है। एंड टुडे आई एम द सम टोटल और द कॉम्पोजिट ऑफ ऑल दो स्क्रिप्ट्स। पेरेंट्स को ये चीज याद रखनी है कि जब उनको लगता है कि बच्चा कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है जो पेरेंट्स को पसंद नहीं आ रही, तो ये मत भूलिए कि जब बच्चा पैदा हुआ था उसने ये नहीं सीखा, मतलब जब माँ के कोख से वो जन्मा था, उसको ये नहीं पता था कि टैंट्रम थ्रो करना क्या होता है, जिद करना क्या होता है। अगर आपका 10 साल का बच्चा आज जिद कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि उसे कहीं ना कहीं ये सिखाया गया कि अगर तुम्हारे को सीधे रास्ते से कुछ नहीं मिलता तो तुम जिद करोगे तो हम तुम्हें दे देंगे। बच्चे को दोष देना बहुत आसान होता है, बट दोष देने से कभी भी उसके बिहेवियर्स में परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन कैसे आएगा? जब आप उसकी स्क्रिप्ट को बदलना शुरू करेंगे।
चाहे बच्चा 2 साल का हो, 3 साल का हो, 5 साल का हो, 10, 15 का हो, किसी भी उम्र का कोई एडल्ट भी हो, अगर उसका बिहेवियर चेंज करना है तो उसके वातावरण में जो स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग हैं उनको वो स्क्रिप्ट को बदलना शुरू करना है। ये नहीं है कि जो लिखा गया उसको हम ऑल्टर नहीं कर सकते, उसका असर रहेगा, बट अगर और स्क्रिप्ट लिखी जाए जो उस नेगेटिव स्क्रिप्ट को काउंटर कर रही है और इतनी पॉजिटिव है कि वो पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी का असर खत्म कर रही है, तो यू विल ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन योर चाइल्ड्स बिहेवियर पैटर्न। ये पेरेंटिंग का बेसिक लेसन है। जो पेरेंट ये बात समझ जाता है कि मेरा बच्चा आज जो है मेरे कारण है और जो कल होगा वो भी मेरे कारण है, जब आपका पेरेंटिंग स्टाइल बदल जाएगा, आपके बच्चे का हर बिहेवियर पैटर्न आप चेंज कर सकते हैं, बच्चे का हर इमोशनल पैटर्न चेंज कर सकते हैं, बच्चे का हर थॉट पैटर्न आप चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरी सबमिशन है एंड आई होप दिस मेक्स सेंस टू एवरीवन हु इज हियर। सर तो आपने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अजमेर जी, आप और मैं हो क्या गए, आप तो दूध की बातें करने लग गए हो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी से मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा इससे जितने क्वेश्चन पेरेंटिंग के ऊपर मैं देख रहा हूँ, सारा क्वेश्चन का जवाब मिल गया उसको। मैंने इसीलिए आपसे परमिशन लेके बोला मैं कि पेरेंटिंग का बेसिक लेसन दे देता हूँ, उसके बाद सवाल बचना बहुत मुश्किल होता है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आ रहा है कि हाई डिग्री ऑफ एंगर, डिस्ट्रस्ट एंड डिसाइडफुलनेस, is it a sign of some depression, and do they require counseling? High degree of Anger, distrust, anger, anger, distrust, and deceitfulness. Anger, distrust, and being deceitful. Yes, sir. एंगर डिप्रेशन का सिम्टम हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगर ये तीनों चीजें एक साथ मौजूद हैं कि गुस्सा भी आपको बहुत आ रहा है, आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे, उसके एक्शंस आप जो है नेगेटिव नजर से देख रहे हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि वो डिप्रेशन। ये आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, अभी एक बार दोबारा थोड़ा सा कट गया था। हाँ, मैं रिपीट करता हूं कि गुस्सा जो है, एंगर जो है, वो डिप्रेशन का सिम्टम हो सकता है, बट अगर एंगर के साथ ये शक हो, वहम हो, आप दूसरों के एक्शंस को या जो भी आपके आसपास इवेंट्स हो रहे हैं उनको आप एक नेगेटिव नजरिए से देख रहे हैं, तो तब वो प्रोबेबली डिप्रेशन नहीं है। हो सकता है उस व्यक्ति की वो पर्सनैलिटी है, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर बीमारी भी हो सकती है जिसके ये सिम्टम्स हो सकते हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट, सस्पिशियसनेस, डाउट। वो अगर बीमारी है तो उसका एक साइकाइट्रिस्ट असेस करके डायग्नोज करेगा, फिर सोचेगा क्या ट्रीटमेंट है। बट अगर ये पर्सनालिटी का हिस्सा है तो उसका सबसे इफेक्टिव जो उपाय है, इलाज है, निदान है, वो है एक ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट, ट्रेन्ड थेरेपिस्ट के पास जाना, एंड मतलब जो भी इश्यूज हैं यू डिस्कस देम, टॉक देम आउट, एंड यू विल ऑलवेज फाइंड सॉल्यूशंस। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि हम लोग इसको कैसे कोप अप करें इस तरह के सिचुएशन को, और मेंटल हेल्थ के स्पेशलिस्ट कहाँ मिलेंगे, मेंटल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं। एक मैं आपसे 5 मिनट इस पर 2-3 मिनट चाहूंगा कि टेल अस व्हाट शुड वी डू once we identify that where should we, does every hospital have a psychiatrist or clinical psychologist, or is there any specialized hospital in the capital of Delhi or nearby? Where should we go? देखिए, हमारे देश में अगर हम मेडिकल फील्ड देखें फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ, मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। इंडिया की अगर हम रफ कैलकुलेशन करें, 130 करोड़ की आबादी है। जब मैं डिप्रेशन की बात कर रहा था, मैंने कहा 20 से 25% लोगों को डिप्रेशन अपने लाइफ टाइम में होना ही होना है। अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, अल्कोहल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन,
एंजाइटी डिसऑर्डर की अलग अलग तरीके की जो मैनिफेस्टेशंस हैं, चाइल्डहुड रिलेटेड डिसऑर्डर, ओल्ड एज रिलेटेड डिसऑर्डर ले लें और एक बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगा लें। मैं तो 20-30% एक बीमारी का बोल रहा हूँ। हम कहते हैं कि सब बीमारियां मिला के जिन बीमारियों में ट्रीटमेंट की आवश्यकता है इज 10% ऑफ द पॉपुलेशन, 13 करोड़ लोग हो गए। 13 करोड़ लोगों को एक्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत है हमारे देश में आज। हमारे देश में मेरे ख्याल से 13,000 भी साइकाइट्रिस्ट नहीं है। मेरा अपना मानना है कि यू विल प्रोबेबली हैव ओनली 6,500 साइकाइट्रिस्ट। दैट मींस हर साइकाइट्रिस्ट अगर 2 लाख पेशेंट्स को देख रहा है देन ही कैन डू जस्टिस टू द प्रॉब्लम। और अगर हम साइकोलॉजिस्ट देखते हैं तो मेरे ख्याल से 1000 से ज्यादा नहीं होंगे। तो एक साइकोलॉजिस्ट या एक थेरेपिस्ट को कम से कम वो कैलकुलेशन होती इतनी कि 10 लाख पेशेंट्स को ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस देखना है इफ यू हैव टू डू जस्टिस टू द प्रॉब्लम्स। मेरी प्रैक्टिस में मैं एक दिन में मेरा जो पोटेंशियल है, मैं कहता हूं कि मैं दिन में इफ आई हैव टू डू जस्टिस टू माय वर्क, मैं दिन में 10 से 15 लोगों को देख सकता हूं। उसके बाद आई कैन नॉट डू जस्टिस टू व्हाट आई एम डूइंग। 2 लाख लोग कहां देखूंगा मैं? अगर मैं 10 लोग रोज देखूं, हफ्ते में 6 दिन काम करूं, या 15 भी लगा लो, 90 लोग मैंने एक वीक में देख लिए। एक महीने में अगर 25 वर्किंग डेज हैं, 250 लोग देखे, साल में 3000 देखे। 2 लाख लोगों को मैं अकेला कहां से देख सकता हूं? सो इट इज अ ह्यूज लैक्यूना मेडिकल सिस्टम एंड माय वरी इज कि एक दिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। And so people who are in decision making positions, they have to realize the paramount importance of increasing the number of medical seats। जो जैसे मैंने MBBS की फिर MD करी साइकाइट्री में, you have to, on top priority, you have to increase the number of psychiatry postgraduates who are passing out every day or every year. You have to increase the number of clinical psychologists who are being produced in this country on a top priority basis। बड़े शहरों में आपको फिर भी बड़े हॉस्पिटल में साइकाइट्रिस्ट भी मिल जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट भी मिल जाएंगे। इंडिया में कई डिस्ट्रिक्ट हैं जब पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपको एक साइकोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा। इफ यू आर लकी आपको एक साइकाइट्रिस्ट कहीं मिल जाएगा, और वो साइकाइट्रिस्ट इतना ओवरवर्क्ड है कि उसको दिन के 200 से 300 पेशेंट देखने पड़ जाते हैं। जिसको 200 पेशेंट रोज के देखने, वो ऑन एन एवरेज 1 मिनट से ज्यादा एक पेशेंट को नहीं दे सकता। No one is doing justice to the problem. So, मतलब मैं बहुत नेगेटिव ये बात बता रहा हूं, बट सच्चाई को छुपाने से वो छुप नहीं जाती। सच्चाई जो है वो सामने कभी ना कभी आएगी आएगी, एंड दिस इज अ बिटर ट्रूथ। वी नीड many more mental health professionals than are currently available in the country. Sir, one question I would like to ask. Yeah. Rather, I should take blame for it. It says that media enhances stress. That's one. And second question is that about addiction to social media. More the number of followers become that this is the trend. You have a large circle. How do you actually differentiate between this online circle of friendship and the real life? मेरा आपकी आवाज कट गई। You will have to repeat yourself. Can you hear me, sir? Can you hear me, sir? Now I can. One question. I must also take blame for that. The question is that media enhances stress. Okay. I mean, I'd like to have your comment on this. That's fine. And the second question is that there is a youngsters they are into the social media, and large number of following is an indicator that you have a large circle of friendship. So how do you explain it to them? How do you differentiate that online and the real life is a different thing? Okay, so two different questions.
completely unrelated, but both very, very relevant. Media enhances stress through a variety of reasons, through a lot of exposure, through a lot of unnecessary exposure, through a lot of sensationalism. So वो मीडिया का नेगेटिव रोल तो है ही है, बट मेरा मानना यह है कि अगर रिस्पॉन्सिबल मीडिया ना होता तो इंडिया में आज जितनी अवेयरनेस है अबाउट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती. मैं अपना अगर पर्सनल एग्जांपल दूं, आई एम नॉट बोस्टिंग, आई एम नॉट शोइंग ऑफ, आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स कि आज से कई साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया टुक द इनिशिएटिव टू promote awareness about mental health. Now, I ran a column in Times of India for several years. पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में शुरू हुआ, फिर नवभारत टाइम्स में शुरू हुआ, रेडियो मिर्ची शुरू हुआ. 3-4 साल मेरा डेली एक प्रोग्राम होता था रेडियो मिर्ची पे. व्हाट द कॉलम्स, और बीच में फिर दूरदर्शन में एक सुबह सवेरे आता था, कई साल वो भी चला. कोई अखबार में, कोई मैगजीन में, कोई टीवी चैनल में, कोई एफएम चैनल में आपको ना कार्डियोलॉजी के ऊपर कॉलम मिलेगा या प्रोग्राम मिलेगा, ना गायनेकोलॉजी के ऊपर मिलेगा, ना न्यूरोलॉजी के ऊपर मिलेगा. मेंटल हेल्थ ही एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर मीडिया ने बहुत फोकस किया. एंड वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द टाइम्स ऑफ इंडिया और दूरदर्शन. वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी पब्लिकेशन हाउस. हिंदुस्तान टाइम्स, दे हैड देयर ओन कॉलम. साउथ इंडिया में आई नो हिंदू में कॉलम बहुत साल चले मेरे कोलीग्स के. एंड सिमिलरली मुंबई में मिड डे हैड कॉलम्स रनिंग. आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द कंट्री. बट मीडिया ने नेगेटिव तो जो करता ही करता है, बट जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस इंडिया में क्रिएट हुई है, इट हैज हैपेंड ओनली बिकॉज द मीडिया वाज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. सो यू नो, मेरे लिए दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. आपके पास रुपए का सिक्का, एक साइड हेड्स है, एक साइड टेल्स है. आप टेल्स देखोगे आपको हमेशा लगेगा कि ये तो खोटा सिक्का है. आप हेड्स देखोगे आप कहोगे यार ये तो एक वो चांदी की गिन्नी है, तो बहुत कमाल की चीज है. सो दैट इज वन. इफ वी टॉक अबाउट सोशल मीडिया, उसमें ना एक बहुत विशियस साइकिल है. अभी जैसे कुछ दिन पहले आई आई वाज टॉकिंग टू सम जर्नलिस्ट. जैसे अब कोविड में स्कूल बंद हो गए, तो स्कूलों के पास कोई चारा नहीं था बच्चों को पढ़ाने का, उन्होंने ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दी. दिक्कत क्या हो गई कि बच्चे जो हैं उनको आपने परमिशन दे दी और यू फोर्स द चाइल्ड टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन, चाहे वो फोन का स्क्रीन हो या टैबलेट का हो या लैपटॉप का. बच्चा 4 से 6 घंटे रोज स्क्रीन के ऊपर अपना टाइम बिताने लगा. और फिर बच्चों को फोन चाहिए ही चाहिए, उनको अपने जो भी करना है, सोशल मीडिया पे जाना है, वीडियोस देखने हैं, गेमिंग करनी है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच इन द लास्ट सेवरल वीक्स द यूजेज ऑफ स्क्रीन टाइम इट वेंट अप. मतलब बच्चा रात को 9 घंटे सोता था, 15 घंटे में से 12 घंटे वो स्क्रीन के सामने बैठा है. दैट इज एडिक्शन. आप कोई भी चीज बार बार करते रहो. मैं अपने हाथ को भी ऐसे 15 घंटे करता रहूंगा तो एक हफ्ते बाद में कुछ भी, मैं अजमेर से वैसी बात कर रहूंगा, एक पार्टी पे मेरा हाथ ऐसे ही चल रहा होगा, या मैं झा साहब को अपने घर डिनर पे बुलाऊंगा, मैं ऐसे ही करता रहूंगा, बिकॉज आई बिकम एडिक्टेड टू दिस. सो यू कीप डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, यू बिकम एडिक्टेड टू इट. तो यू कैन नॉट ब्लेम द सोशल मीडिया फॉर दिस. किया तो हमने वॉलंटैरिली ही है. अब माँ बाप, जहां पे माँ सारा दिन फोन के ऊपर लगी हुई है, अपने बच्चे को किस मुंह से कह सकते हैं तुम अपना फोन छोड़. बाप है सारा दिन बाहर होता है, जी मैं बहुत बिजी हूँ काम पे, वो रात को 8 साढ़े 8 आया, प्रॉम्प्टली आया घर में, अपने सोफे के ऊपर बैठा, 2 ड्रिंक लगाई और वो भी अपने फोन के ऊपर लगा हुआ है. आप बच्चे को कैसे बोल सकते हो कि जी फोन छोड़ दो आप. सो अगेन, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पेरेंटिंग वाली बात करी, आपने अगर बच्चों को बोलना है कि जी दिस इज हार्मफुल फॉर यू, you have to accept that it is harmful for you also. There is nothing which is harmful for the child and safe for the adult. And that is my way of thinking. मैं आपको भी यही जवाब दूंगा. थैंक यू सर. अजमेर जी क्विकली 2-3 क्वेश्चन है. अच्छा, कुछ लोग ये म्यूट करना पड़ेगा लगता है. अजमेर जी थोड़ा म्यूट कीजिए. ठीक. अभी संतोष क्यों आवाज आ रहा है? I think नहीं.
थैंक यू। एक तो है कि किस तरह का मील खाना, मैं इशारे से बोलता हूँ, आवाज में कुछ, और दूसरा एक्सरसाइज। आपका म्यूट है। हाँ, किस तरह की एक्सरसाइज और करनी चाहिए और क्या खाना खाना चाहिए? डॉक्टर साहब, ये दो क्वेश्चन। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही ओके। किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए? एक्सरसाइज में जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास कोई पेशेंट भी आता है, उसको डिप्रेशन है, उसको एंजाइटी है, मैं उसको दवाई देता हूँ, काउंसलिंग वगैरह सजेस्ट करता हूँ, बट मैं उसको कहता हूँ कि आपको एरोबिक एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज क्या है? जिसमें बॉडी की मूवमेंट है, ये नहीं कि आप डंबल से बहुत सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे वो लाभ नहीं मिलेगा जितना आपको चलने से, जॉगिंग से, साइकिलिंग से, स्विमिंग से मिलेगा। Aerobic exercise is associated with the release of certain chemicals inside the brain. वो chemicals को हम आम भाषा में happiness molecules भी बोल सकते हैं, कि आप जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उतने ज्यादा वो हैप्पीनेस मॉलिक्यूल्स आपके दिमाग में सेक्रीट होते हैं, और जितने ज्यादा हैप्पीनेस मॉलिक्यूल सेक्रीट होंगे उतने आप हैप्पी रहेंगे, उतना आपको खुशी का एहसास होगा। और ये साइंटिफिकली बेस्ड स्टेटमेंट है जो मैं बोल रहा हूं। Aerobic exercise is a must. It must be a part of a daily routine. उसके साथ ही साथ अगर हम योगा करें, मेडिटेशन करें, बिल्कुल वही केमिकल्स ब्रेन में रिलीज होते हैं जो एरोबिक एक्सरसाइज रिलीज करती है। अब हमारा जैसा आजकल का लाइफस्टाइल है, कभी भी ये हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति एक दिन में तीनों चीजें कर रहा है। तो या तो आप एक चीज को पकड़ लीजिए, आप वो करते रहिए, या अगर आप जुडिशियस मिक्सचर कर सकते हैं कि भी हफ्ते में आपने 3 दिन एरोबिक एक्सरसाइज करी, 2 दिन योगा किया, 2 दिन मेडिटेशन कर ली, इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर यू। जहां पे डाइट का सवाल है, कौन सी डाइट आपके लिए अच्छी है, उसका सिंपल सा जवाब है, इट शुड बी अ बैलेंस डाइट। आपकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग ऑर्गन्स को कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, कई न्यूट्रिएंट्स हैं वो चाहिए, विटामिन चाहिए। और जब तक आपकी डाइट में सब चीजें हेल्दी या ऑप्टिमम मात्रा में नहीं मौजूद होंगी, बॉडी के किसी ना किसी ऑर्गन में कोई ना कोई कमी हमेशा रहेगी। सो द बेस्ट डाइट इज अ बैलेंस डाइट। और जैसे मैंने दूध का एग्जांपल दिया था, अगर आप कोई भी चीज बहुत ज्यादा खा रहे हो, अगर आप बहुत ज्यादा कार्ब्स खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, वो आपको नुकसान कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं, वो आपको नुकसान कर रहा है, और बहुत ज्यादा फैट तो वैसे ही स्पष्ट है आपके लिए हानिकारक है। डॉक्टर साहब, एक और पूछे लोग कि निगेटिव थॉट भी क्या काइंड ऑफ डिप्रेशन हो सकता है? हाँ जी, सॉरी, नेगेटिव थॉट इज इट अ साइन ऑफ अनडाउटेडली। मतलब द कार्डिनल फीचर, जो सबसे प्रमुख लक्षण है डिप्रेशन का, उदासी के साथ नेगेटिव थिंकिंग है। कि जैसे मेरे सामने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये भी एक ग्लास है मेरे सामने, इसमें इतना सा पानी है, मैं इसको बजाय ये कहने के कि ये ग्लास आधा भरा हुआ, मैं कहूंगा ग्लास आधा खाली है। दैट इज नेगेटिव थिंकिंग। जहां पे नेगेटिव थिंकिंग बिकम्स अ रूटीन फॉर यू, और 2 हफ्ते वो चले जा रही है कि बिल्कुल न्यूट्रल चीजों में भी आप नेगेटिव मीनिंग निकाल रहे हैं, काफी चांसेस हैं, काफी उम्मीद है कि आपको डिप्रेशन या डिप्रेशन से मिलता जुलता कोई रोग है, या उससे मिलती जुलती कोई समस्या है। डॉक्टर साहब, और वो बस थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा आप, डॉक्टर साहब थोड़ा म्यूट कीजिए। मैं करता हूँ। हाँ, थैंक यू। ये बहुत सारे लोग मतलब कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो जिसका जवाब आपने दे दिया, मैं सिर्फ अपने पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहता हूँ कि वो लोग बार बार कह रहे हैं कि ये मूड स्विंग्स क्या है, चाहे टेंशन, वर्क प्लेस पर टेंशन को कैसे रोकें, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट है कोविड के टाइम में, जिसका जवाब डॉक्टर साहब ने दे दिया, वही मैं बताना चाह रहा हूँ लोगों को। तो इसमें
एक चीज, एक क्वेश्चन और आया इस तरह का कि इस तरह कोई वैक्सीन है क्या इसमें? मेरे हिसाब से इसका जवाब आप देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अनम्यूट कर लीजिए। आपको आवाज आ रही है? इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है और जरूरी नहीं है कि हर मूड स्विंग जो है कोई बीमारी का प्रतीक होता है। मूड स्विंग भी, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एक हम बेसलाइन बनाते हैं, ये एक नॉर्मल लाइन है। किसी का भी नॉर्मल मूड जो है वो इस लाइन के ऊपर इस तरह से हल्की सी फ्लक्चुएशन होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब इस बेसलाइन से आप इस तरह होने लगते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन होगी, वो फिर एक मेडिकल मूड स्विंग होगा जिसमें फिर साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है। बट माइनर वेरिएशन तो मूड में बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं तो कहूंगा कि किसी का भी मूड एक लाइन के साथ नहीं चलता। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। अब मुझे लगता है कि 6 बज गए हैं, हाँ जी। तो आपका टाइम काफी थोड़ा था। तो डॉक्टर साहब, अजमेर जी, कैन यू कम ऑनलाइन? हाँ, so I think now that you have answered almost all questions, सभी प्रश्नों का जवाब दिया और हमें इसमें काफी क्लैरिटी हुई है। और मैं जैसे क्वेश्चन आंसर और सबके जवाब मैं देख रहा हूँ और चैट देख रहा हूँ, लोग को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। काफी आपको धन्यवाद मिल रहा है। 500 से ज्यादा लोगों ने इसको पार्टिसिपेट किया, तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों की काफी सिचुएशन इससे काफी अच्छा हुआ है। और काफी, बल्कि आपको मैं बताऊं, मैं पहली बार मैं भी कोई साइकेट्रिस्ट को के सामने बैठ के कुछ सुन रहा हूँ। तो मेरे लिए भी, जबकि मैं हेल्थ मिनिस्ट्री में काम किया हूँ, फिर भी मुझे नहीं कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। आई एम रियली ग्रेटफुल टू मिस्टर अजमेर सिंह, एंड आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर अजमेर सिंह टू propose a vote of thanks on behalf of National Productivity Council and behalf of all of us. Thank you, sir. Thank you very much. Can you hear me, sir? So I must express my gratitude, sir, Dr. Chugh, Mr. Jha, and I think this has been extremely useful for the listeners. In fact, every morning I get WhatsApp messages. So we tend to ignore WhatsApp messages because majority of the messages lack that substance. So the morning I message, the message I got was measure of success is happiness and peace of mind. So my point is that first we need to be happy. I mean, then take a call. We need to be happy. Even if one is not successful, I think we can still be happy. And secondly, I keep telling my friends, my followers on Twitter that please, I mean, we need to be close to nature. And we need to step out, as Dr. Chugh had suggested, extremely grateful to him, what he suggested that, nobody should think of or even attempt suicide. And we have had too many cases of TikTok stars and celebrities dying by suicide. So I think we need to, as Dr. Chugh said, nobody should think of it. Nobody should even think or attempt suicide. And thank you very much, sir, for your time. Thank you, Mr. Jha. Thank you, Dr. Chugh. Immense gratitude, sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. Saab. Thank you, Dr. Saab. Thank you very much. And we will again disturb you for some time. Thank you, sir. All the way.